ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੰਗੀ ਸਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਔਰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਜੇਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਸੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਕਪਤਾਨ ਕਾਕਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰੰਗੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ 400 ਗੋਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੰਗ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 200 ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰਕੋਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
इत्थों मुड़ झंग पहुंच गए। जन सधारण लोगों ने अकैद सत्कार किया। 25,000 रुपये ते होर समान समर्पण किया। लोगों का अथाह जोश वेख के अंग्रेज नूं ताप चढ़ गया। लाहौर विच खबर पुजी कि बाबा जी 8,000 साथियों समेत चनाब नदी विच डुब गए हैं। फरंगी दे शाह विच साह आया। झांकी मुल्तान नूं चले गए ते रस्ते विच कमालीए नेड़े काक्स ने घेरन दा यतन किया, पर बाबा जी उसके अखी कट्टा पा के निकल गए। ये मुसीबत अवतारी पुरखों नूं भी आईयां, जिवें कलगीधर सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहिब का किला त्यागया। निकलदियां सार ही साध संगत दुश्मनों का घेरा, जिन्हां ने पहले ही तक्या होया सी, ज्यों ही आनंदपुर साहिब छड्डिया त्यों ही साध संगत मुसीबतों का सामना इन्हां दुश्मनों नाल करना पिया। हज़ारां लखां की तादाद विच फौजां टिड्डी दल चढ़ चढ़ के आउंदा सी, और सतगुरु सच्चे पातशाह आप ते सिंघां नाल चढ़दी कला विच साध संगत इस मुसीबत का सत्तावादियों का मुकाबला करते रहे। ऐसे ही उन्होंने सिखा प्यारियां नाल होया बाबा महाराज सिंह जी दे नाल। सो उन्होंने पिछे भी एवें फिरते फिरते फिरंगी उन्होंने लभ रहे ने, उन्होंने फड़ लईए। जिमें कि संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरांवाले महापुरखों में सरकार जिंदा फड़ना चाहती सी कि तोपा टैंकों तो डर जाएंगे, पर सूरमे बहादुर मौतों नहीं डरते, इन्हां फिरंगियां दे अगे झुकते नहीं। सो काक्स मूँह वेखदा रह गया। बाबा जी मूल राज अते सरदार शेर सिंह वर्गे अंग्रेज विरोधियों नूं मिलते हुए योजना करते अगे बढ़ते रहे। मैं पहले भी ये बेनती की सी कि महापुरखों दीयां बड़ियां आहूतियां, बड़ियां उन्हां दीयां बहादरियां, बहुत उन्होंने आज़ादी विच हिस्से पाए हुए हैं, जिहड़े कि सानूं लोकां नूं भुलने कदे भी नहीं चाहिए। सो इस प्रकार बाबा जी दे आस पास पता नहीं जिथे जिथे जाते हैं, जिवें सिख जंगलों के विच लोके भी समा कटते रहे। बड़े ऐसे कुरखे सत्तावादी आए जिन्हों ने साध संगत बड़े बड़े तसीहे दे के सिंघां नूं शहीद किया। इत्थे तक के बच्चों के टोटे कर करके गलों में हार पाए गए, नेजियां ते टंगे गए, किन्ने तसीहे दिते गए, पर सिख सिदकों नहीं हारे। इसी प्रकार बाबा जी दे भी मुखालफत ये सत्ताधारी लोग साध संगत उन्होंने तो शरेआम विचरना है। अध्यात्मकवादी पुरुष जिहड़े हुंदे हन वो सत्य ते दृढ़ रहिंदे हन, ते सत्तावादियों नूं सत्य जिहड़ा है अच्छा नहीं लगता। सो इस वास्ते अंग्रेज़ों के राज के समय विच बाबा महाराज सिंह जी संगतां नाल मिल के ये विਉਂਤ बनाउंदे रहे कि गोरे आपां किवें कढीए इत्थों। सो दुर्भागवश सिख मुल्तान, चेलियांवाली, गुजरात और रामनगर दीयां लड़ाइयां हार गए। सब ने अंग्रेज़ों अगे हथियार सुट दिते, पर बाबा बिक्रम सिंह जी ऊनी वाले, कर्नल रछपाल सिंह और बाबा महाराज सिंह जी ने हथियार नहीं सुटे। ये स्वतंत्रता संग्राम लई उसी तरह मैदान विच डटे रहे जिवें बाबा महाराज सिंह जी दे मैदान विच सरगर्म रहन वाले गुप्तचर विभाग ने
अपनी टिप्पणी इस तरह की है। दस्तावेज नंबर 6 कैंप फिरोजपुर 24 मार्च 1849 सेवा विखे सत्कारयोग मैंबरान खुफिया कमेटी श्रीमान जीओ बाबा महाराज सिंह जो अजे जिउंदे जापदे हन ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਸਤਖਤ H.M. ਇਲੀਅਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, पर सरदार चतर सिंह ਅਤੇ सरदार शेर सिंह सहमत न होए। बाबा जी रावलपिंडी तो अलोप हो के सिख फौजा ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ देवी बटाला चंबी कश्मीर ਵੱਲ चले गए। माझा मालवा ਤੇ ਦੁਆਬਾ बाबा जी ਦਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। अमीर काबल ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ बाबा जी ने गुरीला जंग करन की नीति बनाई। राजा गुलाब सिंह डोगरे का सुपुत्र कंवर रणबीर सिंह दाने पट्ठे की गुप्त सहायता करता रहा। बाबा जी महाराणी जिंदा नूं अते महाराजा दलीप सिंह नूं गोरियां दे पंजे विचों कढ के अपनी छत्र छाया हेठ रख के उन्हां दे नाम ते जंग करना चाहुंदे सन। महाराज दलीप सिंह नूं अपने कब्जे विच करन लई अपने शिष्य संत राम सिंह जी नूं ड्यूटी लाई अते नाल विश्वास पात्र सत सिंह 1100 रुपये दिते। ये जथा लाहौर जाके एक धर्मशाला विच ठहरिया अते शक दे कारण गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज़ों ने इसे कारण महाराणी नूं शेखूपुरे दे किले विचों कढ के कुछ दिन इलाहाबाद बनारस विच रख के चनार दे किले विच बंद कर दिता। महाराजा दलीप सिंह नूं भी पंजाब तो बाहर लै जाण दी योजना घड़ी गई। बाबा जी जम्मू के इलाके विचों सूजोवाल जिला हुशियारपुर विच आ गए। अंग्रेज साम्राज के विरुद्ध लड़न लई माझे ते दुआबे के सिंघां नूं जथेबंद करन लगे। 19 नवंबर 1848 नूं लाहौर दरबार नाल अंग्रेज़ां दी संधि हुई, जिस अनुसार जद बाबा महाराजा दलीप सिंह बालग हो जावे, महाराजा दलीप सिंह बालग हो जाएगा, पंजाब का राज उसनूं संभाल दिता जाएगा। महाराजा दलीप सिंह 1858 विच बालग हो जाना सी, पर फरंगी खालसा राज नूं बरतानवी राज विच शामिल करन लई उतावला सी। इस मंतव लई 28 मार्च 1849 नूं लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने अपने सकत्तर सर इलियट नूं लाहौर भेजा, जिसने दरबार के मुखी सरदारां राजा तेजा सिंह दीवान दीनानाथ, शेख इमामदीन ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ दूसरे दिन 29 मार्च 1849 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਕਰਕੇ महाराजा दलीप सिंह तो लॉर्ड डलहौजी ਦੇ ਭੇਜੇ संधि पत्र ਤੇ हस्ताक्षर करवा ਲਏ, जिस ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। महाराजा दलीप सिंह ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਉੱਤੇ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। उस टाइम ते कंपनी हिंदुस्तान विच आई। महाराजा दलीप सिंह नाल सरकार अंग्रेजी चंगा वर्ताव करेगी। इस समय दीवान दीनानाथ ने उठ के कहा
इस वेले बरतानिया सरकार नूं खुल दिली का सबूत देना चाहिए। नाबालग महाराजा दलीप सिंह का राज खोना नहीं चाहिए। इलियट ने क्रोध विच गुस्से नाल दीवान नूं कहा, चुप रहो, आप नूं कैद अते जायदाद की जब्ती हो सकती है। डॉक्टर लागन ने उसकी पत्नी नूं 1200 रुपये मासिक फीस दे के महाराजा दलीप सिंह का ट्यूटर नियत किया गया। 1849 नूं महाराजा दलीप सिंह नूं पंजाब विचों कढ के फतेहगढ़ यूपी विच भेज दिता। उस तो बाद वलायत लै जाके आया गया। बाबा जी अते उन्हां दे साथी आज़ादी की लहर नूं प्रचंड करते हुए आदमपुर जिला जलंधर विखे एक जंगल विच मीटिंग कर रहे सन, जो इत्थों अमृतसर जाके माझे विच आज़ादी परवानियां नूं जथेबंद करना चाहुंदे सन। एक मुखबर ने 28 दसंबर 1849 नूं जलंधर के डिप्टी कमिश्नर हैनरी वैनस्टार्ट नूं खबर दी कि बाबा जी इस वेले आदमपुर की झिड़ी विच हन। डिप्टी कमिश्नर 30-40 सिपाही ते एक कोतवाल नूं नाल लैके उस वेले आदमपुर नूं चल पिया। जांदियां नूं रात पै चुकी सी, चंद चढ़िया होया सी। सिपाहियों ने फड़ लो का रौला पाया। पहला 6 आदमी निकले, एक ने डीसी ते परछी नाल वार किया, पर डीसी ने पिस्तौल मार के उसकी बांह नूं निकारा कर दिता। उस तो बाद डीसी की आग्ञा अनुसार घोड़ा घेरा तंग करते हुए अगे वधे अते बाबा महाराज सिंह जी नूं 21 सिंघां समेत गिरफ्तार कर लिया। इन्हां सिंघां विच बहुते दुआबे दे सन। बाबा जी नूं जेल विच बंद करन समय जामा तलाशी लई गई, जिस विचों एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की छोटी भेड़ अते एक चिट्ठी दोस्त मुहम्मद खान अमीर काबल की मिली। साध संगत देखो किन्ना गुरबाणी नाल महापुरखों का निर्मले महात्मा का प्यार सी, श्रद्धा सी कि बाबा जी भावें मुसीबत के समय ते जंगलों विच आस पास किते ना किते सिंघां नाल सरदारां नाल मीटिंगां करते रहंदे, परंतु छोटा स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का नाल रखते। इत्थों इतिहास जार होंदा है कि निर्मले महापुरख शुरू तो लैके गुरबाणी का पठन पाठन और गुरबाणी का सत्कार बरकरार रखते रहे। डीसी ने 29 और 30 दसंबर 1849 नूं मिस्टर मैकलोड कमिश्नर ते सुपरिटेंडेंट जलंधर डिवीजन नूं 2 चिट्ठियां लिखियां, जिन्हां विच दर्ज सी कि महाराज सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया है अते साथियों समेत जलंधर जेल विच बंद कर दिता गया। सिख गार्ड दे महाराज सिंह नूं नमस्कार की। सारा दिन हिंदू उन्हां दे दर्शनां नूं जेल की परिक्रमा करते रहे। बाबा जी का जन्म सधारण विच परम सत्कार वेख के डीसी नूं शक होया कि पहले ते लगे सिख सिपाही किते बगावत ना कर देण। सिखां दी थां ते मुसलमान अते अंग्रेज सिपाहियां नूं पहरे उत्ते लाया गया। जलंधर छावनी विच सख्त पहरे हेठ 2 दिन रखा गया। बाबा जी की गिरफ्तारी की गोरा शाही विच अथाह खुशी मनाई गई। जदों महाराज सिंह ते उन्हां दे साथियां नूं जेल लिजाया गया तां सिख गार्डां विचों कईयां ने उस अगे सिर झुकाया। सारा दिन अनेकां हिंदू उस इमारत के दर्शन करने लई जेल दुआले इकट्ठे होंदे रहंदे, जिस विच उन्हां नूं कैद कीता होया सी अते मैं जो हुण तक हिंदू लोकां विच हरमन प्यारा सां, इस वेले उन्हां दी घृणा दा पात्र बन गया।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ 360 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਨਰੀ ਵੈਨਸਟੇਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਦੇ ਰੱਬ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੋਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ 38 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਮਿਟ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਵੇ।
पर भावें इस गल का सबूत तो मेरे कोल कोई नहीं, फिर भी जिस प्रकार मैं लोकां विच विचरदा मेरे मन विच विश्वास कमजोर नहीं होया। इसलिए मैं ये गल लिखदा कि जेकर सिख सैना के उप कमांडर कैप्टन टर्नर ने इस व्यक्ति महाराज सिंह की संभाल की जिम्मेवारी ना लई, भावें उसने वादा किया है कि हुशियारपुर तो हुक्म मिलन की हालत में हो जिहा करेगा, तो मैं इस गिरोह नूं जां तां बरी ब्रिगेडियर व्हीलर सीबी की सुरक्षा हिरासत में दे देंगा, जां फिर जेल विच सिख सैनिकों को उत्थों हटा के उन्होंने थां ते मुसलमान चपड़ासियों को लगा देंगा अते फाटक के बाहर गश्त करने वड्डी संख्या विच अनियमित घोड़सवार कर देवांगा। मेरी इच्छा तो यहो रही कि मैं इस पुरुष की महत्ता ते जोर ना देवां ते इस नाल एक सधारण कैदी वर्गा ही सलूक करा, पर मैं ना तो सारे देश की धार्मिक कट्टरता का अते ना ही एक महान कौम की सांझी दौलत का विरोध करने के योग हाँ। अते जेकर महाराज सिंह बच के निकल गया अते दोबारा ना फड़िया जा सकिया, तो सिख कौम की सोच मिल के एक व्यक्ति महाराज सिंह की सोच बन जाएगी। अजिही हालत नाल तो महाराज सिंह नूं ना पकड़ना 1000 गुणा चंगा हुंदा। सिट्टे वजों मैं गल कहांगा कि महाराज सिंह नाल कोई सख्ती नहीं वरती गई, ना तो उसके पैरी बेड़ियां पाईयां गईयां, ना ही उसनूं जंजीरां विच जकड़िया गया। रात वेले उसका सज्जा हाथ एक दृढ़ इरादे वाले मुसलमान दे खब्बे हाथ नाल बंध दिता जाता। जेकर पुरुष जो इस वेले एक निमाणा कैदी है दृढ़ इरादा करके भुखा मर गया अते मरण तो पिछों आने वालियां नस्लों के दिलों में अपना नां सदा लई अमर कर गया, उही ना जिहड़ा उसके 2 साल जेल विच जिउंदे रहण पिछों हौली हौली लोगों के मनां विचों निकलदा खत्म हो जाना है, तो एक मंदभागी गल होगी। मैं हाँ जलंधर दफ्तर डिप्टी कमिश्नर 30 दिसंबर 1849 ये पत्रिका जिहड़ी सी अंग्रेज वालों वेलस्टेट वालों लिखी गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 13 जनवरी 1850 के एक नोट में लिखा ये खबर भरोसे नाल सुनी गई है कि महाराज सिंह नूं मिस्टर वेंस्टार्ट डीसी जलंधर ने गिरफ्तार कर लिया, जिस हिम्मत दलेरी हौसले तो काम लैके उन्होंने महान बागी नूं फड़िया वो शलाघायोग है। साध संगत जिन्ने भी धार्मिक भगत साधु महात्मा आज़ादी घुलाटीए हुए ने उन्होंने ये बागी कहते रहे हैं। कोई भी धर्म के मार्ग से अज भी साध संगत चलता है, तुसी कचहरियां च देखो जे कोई सच बोलता है साध संगत उसकी सुनवाई नहीं होती, झूठ बोलन वाला साध संगत अपना काम कढ़ जाता है। एवें ही थाणियां विच मतलब कहण दा है कि जिवें सतगुरां दी बाणी कहंदी है सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल। सच का बीज जिवें लोकां दे अंदरों खत्म हुंदा जा रहा है, इस प्रकार साध संगत ऐसे महान पुरुषों नूं ये लोग बागी कहते रहे। सो साध संगत साडे हिंदुस्तान ते किन्ने हमले होए, इत्थे मल्टीकल्चर है, ईसाई भी रहिंदे ने, इत्थे मुसलमान भी रहिंदे ने, बोधी जैनी
सारे तरह के लोग रहते ने, सब नूं एक आज़ादी है आपो अपने धर्म दे विच जीवन जीउण दी, परंतु सब तो सांझी वालता वाला सब का सिरमौर ग्रंथ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो सारे धर्मां, सारे मजहबां, सारे प्राणियां, सारे फिरकियां, सब संप्रदावां, सब मिशनां नूं सांझा उपदेश दिंदा है। ये 10 गुरु साहिबानां दा बहुत वड्डा परोपकार है। इसे ही बाणी दे नक्शे कदमां ते चलदे हुए ये महापुरखां दे जीवन सन, जिन्हां दे जीवन आप जी निर्मल पंथ की गौरव गाथा सरवण कर रहे हो। इसका सारा सिरों पाओ महान आत्मा ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु नूं जांदा है कि जिन्हां ने ये सारियां इतिहासक सतरां या उन्हां महापुरखां दे नाम या उन्हां ग्रंथां दे नाम सारे खोज कर करके एकत्रित किए। वो बड़ी एक महान आत्मा पवित्र रूह सी जो संगत नूं पुस्तक दे गए, जिस विच आपां रोज वाच के देखते हैं। बड़ी वड्डी मेहनत वाली गल है। देखो ना सारियां तारीखां नाल लिखियां हुई ने। सो एक खतरनाक बागी है, फड़िया गया है, शलाघायोग है। मेरी इच्छा है कि अजे खतरनाक द्रोही नूं कचहरी राही सख्त तो सख्त सजा दी जाए। सच बोलण वाले नूं सजा दी जाती है, परंतु यह है कि साध संगत जिहड़े उस टाइम के गवर्नर जनरल जिहड़े ने उन्हां दा तां किते नामो निशान नहीं रहा, पर बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी जैसे महापुरखों दीयां तस्वीरां, उन्हां दे स्वरूप, उन्हां दे इतिहास, उन्हां दे जिथे जिथे चरण पाए गुरुद्वारे और उन्हां दे परोपकार रहिंदी दुनिया तक कदे संगतां भुल नहीं सकदी। सो मेरी इच्छा कि अजे खतरनाक द्रोही नूं कचहरी राही सख्त तो सख्त सजा दी जाए। मेरा बोर्ड नाल इस गल्लों मतभेद है कि भाई जी नूं खुली कचहरी विच पेश किया जाए। हुण साहिबजादियां ने की विगाड़िया सी? साहिबजादियां नूं साध संगत 7 साल ते 9 साल दे मासूम छोटे साहिबजादे जिन्हां नूं कचहरियां दे विच फतवे लाए गए कि इन्हां नूं जींदे जी नीहां विच चिण दिता जाए। साध संगत ये सत दा ते सत्ता दा हमेशा ही आपस विच एवें ही ओपोजिशन बनी रही है। ये कोई नवी गल नहीं। जिहड़े सतवादी पुरुष ने वो हमेशा सत वाला जीवन, धर्म वाला जीवन अपनाउंदे हैं। इस नाल गैर यकीनी हालात वधणगे अते प्रघाट वध मिल सकती है। शनाख्त हो चुकण उपरंत बाबा जी नूं इलाहाबाद के किले विच भेजा जाए, फिर कलकत्ते भेज दिता जाए। उस समय बोर्ड इस योग हो सकेगा कि बाबा जी लई कोई सरदार सिख पहरा ना दे सके। गवर्नर जनरल समेत कौंसल के हुक्म नाल बाबा जी नूं रेगुलेशन बंगाल 1818 के अधीन इलाहाबाद किले विच भेजा गया। इत्थों बदल के फोर्ट विलियम कलकत्ते विच बंद कर दिता गया। बाबा जी की गिरफ्तारी की कितनी खुशी मनाई गई, इसका एक होर प्रमाण प्रधान ईस्ट इंडिया कंपनी समेत कौंसल की एक चिट्ठी 14 जनवरी 1850 नूं मिलता है। असी इस गल तो प्रसन्न हाँ कि दलीप सिंह नूं लाहौर तो लै आंदा है, उसनूं छेती ही
असल ठिकाने ते पहुँचा दिता जाएगा। सानू इस गल की अति तसल्ली हुई है कि अंत साडी मुहिम सर हो गई। ये चिट्ठी है। असी समझते हैं महाराज सिंह का फड़िया जाना किसी तरह भी उन्हां गल्लां नालों घट महानता नहीं रखता। असी गवर्नर जनरल की सिफारिश नाल जो उसने वैनस्टाट बारे की है शलाघा ते मान नाल पूरी तरह सहमत हाँ। अजय कैदियों की संभाल ते रखिया करनी ऐसे समय सारे नीतिवान ते तकबर सहित होने का चिन्ह। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस असी तुहाडे शुभ चिंतक सही एच सैलवे हाबरट कैपबेल ते जॉन अंत 23 मार्च 1850 ਨੂੰ गवर्नर जनरल ने हुक्म दिता कि बाबा महाराज सिंह ਨੂੰ सिंगापुर भेजा जाए। जेल के दरवाजे के उपरले कमरे में रखा जाए ताकि बाकी कैदियों तो वख रह सके। 7 मई 1850 ਨੂੰ बाबा जी ਨੂੰ सेवादार बाबा खड़क सिंह समेत मुहम्मद शाह नामी समुद्री जहाज सिंगापुर ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ गया। ਉੱਥੋਂ ਦੇ इंचार्ज ਨੂੰ गवर्नर जनरल हिंद के सकत्तर वालों लिखा गया, मैनू आप जी नूं दस्सण की आग्या हुई है कि बाबा महाराज सिंह जी की निगरानी अंग्रेज सरकार लई खास स्थान रखती है। इसलिए अति जरूरी है उसनूं नेड़ियों वेखे जाण वाली थां ते प्रबंध हेठ रखा जाए। पर याद रहे ये शाही कैदी है, उस नाल गलत वर्ताव न किया जाए। गवर्नर जनरल जब सिंगापुर गए सन, सानू ये याद है सिंगापुर की जेल विच उपरली मंजिल का कमरा बहुत चंगा है, वो राखी की दृष्टि नाल भी ठीक है। दास ने भी साध संगत ओदे दर्शन किए हैं सिंगापुर विखे जिथे बाबा जी कैद रहे। मैनू आग्या हुई है ये प्रबंध हो सके तो अवश्य किया जाए। आने वाले समय तक गोरे फौजी के कमिश्नर अफसर इस काम उत्ते लाए जान, भावें उन्होंने अलाउंस दिता जाए। ये जनरल साहब की आग्या है। कैदियों के रहायशी स्थान से कमांडर की आग्या बिना कोई न जाए। कमांडर भी हफ्ते विच घट्टो घट्ट 3-4 बार आप जाके वेखण का यतन करे। किन्नी निगरानी देखो महापुरखों से की गई। बाबा महाराज सिंह जी और उन्होंने सहायक बाबा खड़क सिंह नूं सिंगापुर जेल की उपरली छत के कमरे में रखा गया। कमरे के चुफेरे होर भी उच्ची 4 दीवारी कर दी गई। कमरे दियां खिड़कियां भी बंद कर दित्तियां गईयां। स्वच्छ हवा आनी जानी बंद कर दी गई। इस काल कोठड़ी विच बाबा जी चढ़ती कला विच रहे, मन नाम नाल जुड़िया रहा। अठे पैर सिमरन करन लगे। काल कोठड़ी बंधन प्रतीत नहीं हुई, आखो सतनाम। इसनों एकाग्रता वास्ते एकांत स्थान समझते सन। किसी शायर ने कथन अनुसार गुजरजा सबरो रजा से बे न्याजाना कि इसके बाद कोई इम्तहान बाकी नहीं रहता। भाणे विच अडोल आनंद चित रहन लगे। गुरबाणी के कथन अनुसार इस अवस्था के धारणी बन गए। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। साध संगत देखो महापुरखों दियां कमाइयां
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਖੇੜੇ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚਲਣ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰੂ ਜਾਣ। ਇਹ ਖੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਚਣੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਿ ਐਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਹਾਂ,
इस वास्ते सानू अंग्रेज़ों कोलों चंगे बर्ताव की आशा नहीं है। फिर भी सानू तंगी नहीं देनी चाहिए। बाबा जी की निगरानी लई नियत अंग्रेज कमांडर ने कहा, जेकर तुसी सानू लिख के दिओ कि असी राजनीति में हिस्सा नहीं लवांगे, अपने डेरे विच रहांगे, केवल भजन पाठ करांगे, अंग्रेज सरकार के काम विच दखल नहीं देवांगे, तद तुहानू हुण भी रिहा किया जा सकता। मैं सत संगत आप जी नूं बेनती की है कि सतवादी लोग, बंदगी करन वाले महापुरख सत्तावादियां हंकारियां दे अगे कदे झुकदे नहीं। सत्कारयोग साध संगत, जिवें अज कोई धन दे के अमीर बंदा कहंदा कि मेरे घर विच कीर्तन करो, ते जे कीर्तनीए दे अंदर इन्नी गड़स होवे कि अमीर बंदे नूं कहे भी कीर्तन सुनना तो इत्थे आके सुना, ये साध संगत बड़ा ही एक कठिन है। क्योंकि जिसदे कोल गुण है, जिस कोल बाणी का अभ्यास है, ये तो फिर जग्यासा रख के आके सरवण करना चाहिए, ना कि असी कहिए भी तुहानू असी बाणी सुनाइए ते कीर्तन। हाँ, एक श्रद्धालु बंदा है कि मानना करो वो भावना रखता है, तो जे कोई माया दे के आखे भी मेरे कीर्तन, ते मैं कहना ये बाणी दी ते कीर्तन दी तौहीन है। इसे प्रकार बाबा महाराज सिंह जी नूं ये लोग झुकाउणा चाहुंदे सन, पर बाबा जी ने कहा ये किवें हो सकता है। सूरबीर बचन के बली, असी अपने सिद्धांत नूं किवें त्याग सकते हैं। जेलर बाबा जी के दृढ़ इरादे तो अत्यंत प्रभावित होया। उसने अपनी रिपोर्ट विच जनरल लॉर्ड डलहौजी नूं लिखिया, बाबा महाराज सिंह जी का सुभाव मिलवर्तन बहुत चंगा, पर खड़क सिंह ने मेरा अपमान किया, जिस दे कारण सारे कर्मचारी मैनू दसदे हन असी उपर लिख आए हाँ कि बाबा जी नूं जिस कमरे विच रखिया गया सी उस विच कोई जाली जंगला रोशनदान नहीं सी, तुरन फिरन लई अगे वेड़ा नहीं सी, कोई गलबात नहीं कर सकता सी। साध संगत बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भी इसे प्रकार पिंजरे दे विच कैद किया गया। धन गुरु 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं भी पिंजरे च कैद किया गया। सो ये अवतारी पुरखां भगतां ते तसीए साध संगत उन्होंने दिते जाते रहे, पर अज उन्होंने इतिहास असी पढ़ते हैं, वाचते हैं, तो पता लगता साडे पुरखियां ने साडी आज़ादी, साडे देश कौम धर्म वास्ते किन्नियां कुर्बानियां कीतियां ते गुलामी दे संगल तोड़े। कई वर्ष को कमरे विच बंद रहन करके उन्हां दा स्वास्थ्य कमजोर होण लग पिया, गोडियां विच दर्द होण लगी क्योंकि तुर फिर नहीं सकते। आप जी नूं याद होवे इतिहास के गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं जिस पिंजरे विच कैद कीता सी, ना सतगुरु जी बैठ सकते सन, थले किल, ना सतगुरु जी वख लै सकते सन, सैड ते तिखे किल, ना सतगुरु जी उच्चा सिर कर सकते सन कि उपर किल। एडे एडे अवतारी पुरखों नूं साध संगत इन्ने ने तसीहे दिते गए। अज सानू इस धर्म के मार्ग से चलदियां किते माड़ा जिहा नुकसान हो जाए, बंदा कहंदा सिख होण दा की मान है, जे महाराज ने साडा नुकसान ही करना छड्ड के गां जांदे लोग। इस करके सिक्खी खंडे नालों भी तिखी। सो गुरु के सिखो
ਬਹੁਤਾ नहीं तो कम से कम नितनेमी प्रेमी होवो ते कदे ऐसे महात्मा महापुरखों की निंदा करना नाल कदे ना सुनो। शायद सतगुर रहमत कर देण। कलयुग का समा थोड़ा समा ही धर्म के मार्ग च लगा होवे ते बहुता फल स्वरूप इसका मिल सकता। ये साडे पुरातन महापुरख साडे वड वडेरे जिन्हां दीयां कमाईयां नूं असीं नमस्कार करते हैं। सो नेत्रां विच मोतिया उतर आया बाबा जी दे गोडियां विच दर्द रहन लगा, क्योंकि कितना लंबा समा उस कैद विच बाबा जी नूं रखिया। मिस्टर चर्च रेजिडेंट साहिब कौंसल विच लिखिया कि महाराज सिंह नूं 1850 विच काल कोठड़ी विच बंद कीता सी। हुण 30 जून 1853 है। इक्को थां रहन करके तुरन फिरन ना होण करके गोडियां विच उन्हां दे दर्द होया हो गई है। अखां दी निगाह जांदी रही है। चर्च दे अगे लिखिया है, महाराज सिंह नूं बाहर तुरन फिरन की आग्या दिती जावे। उस नाल कोई कैदी गलबात नहीं कर सकेगा, क्योंकि गोरे सिपाही अते अफसर नाल होणगे। जिहड़ा गवर्नर लॉर्ड डलहौजी लिखती रूप विच कहिंदा सी कि महाराज सिंह शाही कैदी है, इन्हां नाल चंगा वरताओ कीता जावे, उस दे कर्मचारी बाबा जी उत्ते अत्यंत सख्ती कर रहे हैं। ये लिखतां कहण मात्र ही सन, अमल वास्ते नहीं सन, क्योंकि गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भी मिस्टर चर्च की सिफारिश ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ रिपोर्ट ते कोई अमल नहीं किया, बल्कि जवाब विच लिखिया। एवें हुंदा हुण भी साध संगत सेंटर चों ज्यों माया चलदी है, स्टेट दे विच आउंदी है, पता नहीं किन्ने हिस्से हो के ते एवें थोड़ा जिहा हिस्सा आके स्टेट ते किते लगदी है। साध संगत ते जो कुछ है उत्तों लैके थल्ले तक, थल्लों लैके उत्ते तक विगड़िया होया ढांचा है सारा। ये राजनीति धर्म नीति नहीं है, कुटल राजनीति है। ये साध संगत गोरियां तो चली आई। अज साडे आ जिहड़े काले ने ना साध संगत जिन्हां दे हुण राज ने, ये उन्हां दियां ही अंश बंस ने सारियां। इस वास्ते हिंदुस्तान विचों अज दे दौर विच ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਿਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ, ਨਾ ਧਰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ संगत पर गुलामी धर्मी लोग नहीं कदे करते, गुलामी च नहीं रहते हो। इसलिए हुण शाही कैदियों बारे कानून की सख्ती नाल वरतों की जावे। 14 जनवरी सन 1554 नूं गवर्नर सिंगापुर के सकत्तर ने हिंद सरकार नूं लिखिया, मैं आप जी की सेवा विच बाबा महाराज सिंह बारे असिस्टेंट सर्जन की रिपोर्ट भेज रहा, जिस विच बाबा महाराज सिंह ते खड़क सिंह की सेहत का वेरवा है। बाबा महाराज सिंह बिल्कुल नेत्रहीन हो चुके हैं। वाहिगुरू हुण उन्हां लई ऑपरेशन भी सफल नहीं हो सकता। इस पत्र का जवाब आया, बाबा महाराज सिंह के स्वास्थ्य बारे योग प्रबंध किया जाए, पर होया कुछ नहीं। 1 जुलाई 1856 नूं एसिस्टेंट सर्जन मिस्टर जैस कूपर सिंगापुर जेल ने शाही कैदियों बारे अपनी 6 माही रिपोर्ट विच गवर्नर नूं लिखिया, मैं बेनती करदा
कि खड़ग सिंह की सेहत बिल्कुल ठीक है, पर बाबा महाराज सिंह की हालत चिंताजनक है। पिछले 2 महीनों तो उसकी सेहत बहुत गिरती जा रही है। आप जी नूं सुचित होवे कि अज भी साडे बड़े जुझारू सिंह जेलों के 20-30 साल तो डके हुए ने। लोकां विच कुछ दस्सिया जाता है पर उन्हां दे नाल कुछ होर कीता जाता है। इस प्रकार साध संगत न्याय नाम की चीज कोई है नहीं। वैसे ही दोष ला ला के साडे किन्ने बच्चे नेस तो नाबूद कर दिते गए, किन्ने बच्चे दरियावां विच मार मार के रोड़ दिते गए। साध संगत पता नहीं कितना कुछ होया। सो ये अंग्रेज़ों के समय तो ही सब कुछ चलिया है। उसकी जीभ उपर खब्बे पासे कैंसर हो गया। बाबा जी की गल कर रहे हैं, नेत्रहीन हो गए, जिस विचों खून रिसदा रहिंदा है। इस करके हालत बहुत खराब है। वो कई हफ्तियां तो पानी विच नींबू ते लूण का रस मिला के लै रहे हैं। मैं सिफारिश करदा कि कैदियों नूं बाहर सैर करन दी खुल दिती जाए। गंदे खून के डिगण के कारण कमरे अंदर दुर्गंधी फैल गई है। कमरे विच ताज़ी हवा का प्रवेश नहीं हुंदा। साध संगत कीता ते सब कुछ आप ही किया ना, फिर एडी दया का भी की कारण बनता। इस करके कमरा बहुत गंदा है। खुली हवा वास्ते इन्हां दी हवालात विच तब्दीली करनी जरूरी है। जेकर होर कुछ नहीं हो सकता तो इन्हां नूं किसी घोड़ गड्डी विच बिठा के खुली हवा विच फिराया जाए। सैर बहुत जरूरी है। घट्टो घट्ट हफ्ते विच जाए। 4 साल लगातार महान तपस्वी सेवा दे पुंज निर्मले महात्मा महापुरख बाबा महाराज सिंह जी सिंगापुर की जेल दे विच किन्नियां तकलीफां नूं झल रहे ने। अज लोग कहते जी ये निर्मले साधा ने की कीता, इन्हां दा की हिस्सा है सिख धर्म विच। सुचेत रहे साध संगत, इन्हां महापुरखां दीयां कमाईआं दे करके अज असीं आज़ादियां माण रहे। गुरुद्वारियां दे इतिहास ते दर्शन दिदारे कर रहे हाँ। सतगुरु कलगीधर गुरु नानक देव जी की कृपा अनुसार। पर असिस्टेंट सर्जन जैस कपूर की रिपोर्ट ते कोई अमल नहीं होया। बाबा जी की हालत अत्यंत खराब हो गई। उपरोक्त डॉक्टरी रिपोर्ट विच बाबा जी दियां भयानक असह बीमारियां का जिक्र किया गया। आप अरदास विच भी रोज़ बोलते हाँ, जिन्हां सिखां ने महात्मा ने असह ते अकह कष्ट सहारते हुए शहीदियां दित्तियां। वो असह की है जिहड़ा ना सह सकण वाला, अकह की है कि जिहड़ा अत दा कहर हो गया। इहदे तो वध की कहर हो सकता, इहदे तो वध की असह होर दुख सहण वाला है। परंतु रब दे प्यारियां भगतां संतां महापुरखां जुझारूआं ने असह ते अकह दुख सहारते हुए गुरु के बाणी नूं मनदियां होइयां जीवन अपना अखीरले सवास तक सिक्खी सिदक केसां ते सवासां नाल निभाया। ऐसे महात्मा महापुरखां की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ने आप जी लाइव सरवण कर रहे हो, मैं बेनती करना आप भी सारे उन्होंने कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। इतिहास याद रखिए साध संगत अपने वडेरियां का। सो क्योंकि बाबा जी को जेल के उपरले कमरियां विचों एक अत्यंत छोटे कमरे विच बंद किया गया सी। इस कमरे के जंगले रोशनदान अते बारियां बंद किए गए सन। साध संगत तुसीं देखो किते इहो जी जगह ते असीं किते थोड़ा जिहा बैठे होइए ना ते सफोकेशन हुंदी है, साह बंद हुंदा है।
ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, मैं बड़े बड़े महात्मा कुटिया स्थान देखे कि बड़े बड़े छोटे छोटे कमरियां दे विच जिथे कोई बूहा बारी नहीं। आ मालवे विच कई महात्मा देखे साध संगत बरकत साधु के अंदर कई कई लम्मा समा बैठ के नाम अभ्यास करते रहे। साध संगत महात्मा महापुरखां दीआं कमाईयां वाहिगुरू नाल अभेद अवस्था विच रहना, यही तो साधुआं महापुरखों का जीवन। अज साध संगत उन्हां दे स्थानां ते संगतां दे इकट्ठ क्यों ना होण? असीं कहने जी डेरियां ते मेले काहदे लगदे ने? कबरां ते मेले लगे होण तां रोकणे चाहीदे, गाउण वालियां लगियां होण ते रोकणियां चाहीदियां ने। पर जिहड़े कमाई वाले महापुरख ने उन्हां दे स्थानां ते जदों कीर्तन कथा बाणी नाम सिमरन सेवा अभ्यास हुंदा होवे, भुल के भी कदे रुकावट ना पाइए, साध संगत वड्डे दोषी होवांगे। सो संगत जी, इस प्रकार महापुरखां नूं तंगियां दित्तियां गईयां, चुफेरे दीवार होर उच्ची कर दित्ती गई। दोष की सी बाबा जी का? साहिबजादियां दा की दोष सी? बाबा बंदा सिंह बहादुर का की दोष सी? भाई तारू सिंह मतीदास सतीदास दयाला जी जरखड़ियां ते चढ़ा दिते गए सिंह की दोष सी इन्हां दे? सत्कारयोग बाबा जी बाबा वीर सिंह जी अमर शहीद महापुरखां का की दोष सी? बस यही है कि शुरू तो चलता आ रहा है, जिस नाल साध संगत महापुरखां दे जीवन दिन दुगनी ते रात चौगनी होर चमकदे ने। सो इस प्रकार उच्ची कर दिती गई दीवार, जिस नाल हवा दा आना जाना बंद हो गया। किसी हिंदुस्तानी नाल गलबात नहीं करन दिती जाती, रात नूं जां दिन नूं तुरन फिरन की आग्या नहीं सी। फिर गुरु कलगीधर पिता दा शेर पता नहीं किन्ने संकल्प विकल्प करता होया अनेक बीमारियां नाल ग्रसिया गया, गोडियां की बीमारी नाल पीड़ित हो गया, नेत्रां की जोत जाती रही, मूँह के खब्बे पासे कैंसर हो गया, जिस करके खाना पीना बंद हो गया। जेलरां वालों कमरा साफ करन की जरूरत नहीं समझी जाती सी। देशवासियों को इस आज़ादी घुलाटीए का कोई पता नहीं सी कि वो कित्थे है, किस तरह की हालत विच है, जीवित है कि चढ़ाई कर गया है। बात के प्रबंधक बाबा जी बारे पूरी तरह अज्ञात सन, नहीं सी पता। सत्कारयोग साध संगत 84 तो बाद भी जिहड़ा समा बीतिया, आप जी नूं पता नहीं कित्थे कित्थे सिखां नूं सिखां दे बच्चियां नूं लिजा के पता नहीं को के किवें मारिया गया। सो कहण तो मुराद साध संगत जिहड़ा नौरंगाबाद साडे तरनतारन दे नज़दीक जिथे स्थान बाबा जी बाबा वीर सिंह जी महापुरखां दा सी, जिथों की सेवा बाबा जी बाबा महाराज सिंह जी नूं मिली, उत्थों दे सत्संगियां नूं प्रबंधकां नूं नहीं सी पता कि बाबा जी कित्थे हन और किस हालात विच महापुरखां दा इह समां बसर होया। साध संगत ऐने दुख तकलीफां सह के महापुरख रब दे रंग विच रहे। सो जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, धूड़ तिना की जे मिले जी कौ नानक की। अरदास करते हैं कि ऐसे रब दियां बख्शियां हुई रूहां की चरण धूड़ मिले, उन्हां दा इतिहास जो है असी समझिए वाचिए, ते कम से कम साध संगत होर नहीं तां महापुरखां दे जीवन अगे सुनाइए, ताकि संसार भर विच गुरसिੱਖੀ दा प्रचार
ਸਾਧੂ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਦੇਸੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖੋ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਸੰਜਮ 'ਚ ਖਾਓ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੋ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਰਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਗੀ ਹੋਵੋ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ